All right, so I think we can start today. Hello everyone, this is Akanksha, communication coach, and today we are going to talk about how you can talk the past event, past incidents, and past memory without thinking about the technical side of the grammar. Okay, so just a second. Yeah. So that is what I was talking about, because this is the series, this is the live series which I'm conducting on every Saturday at 8 p.m., where I'm going to talk about the English, basic English, spoken English without focusing on grammar techniques. Okay, I'm trying to come with the practical examples, I'm trying to come with the real-time examples and very simple, so that you can learn English without putting too much focus and efforts in grammar techniques. Okay, so let's move ahead and let's since this is the second live, okay, the first, like last week what we did, I'm going to repeat that recap, giving you the recap again, and then we are going to connect and we are going to start the session for today. Okay, so what we have covered till now, we have covered the sentences in the last session, that how to make sentences with two words, where to use am, where to use are, where to use is, right? So this is something which we have covered. Second, we have covered about how to make sentences on the daily routine activities, how to make sentences on the action which is going on right now, how to make the sentences for the actions which is recently done, which is completed recently. Okay, so these are the parts we have covered. Also, we have covered how to introduce yourself so that you can understand the basic introduction, what you need to cover in your introduction in a simple way. Okay, it's very simple. So that is something which we have covered. If you have not completed, please go through that session, because you will be getting the link, like there is a connection of each session, right? So first we have completed the sentences which is talking about the present scenario, the present activity, the present actions. Today we are going to talk about what is happening into the past, what happened in the past. Okay, how to talk about that sentence, how to make those sentences without translating. One thing which I want to highlight to all of you, that if you want to learn English, stop translating in mind from mother tongue to English. Because in your mother tongue, say for example, my mother tongue is Hindi, if I start talking, like if I start translating the Hindi words to English and then I try to make sentences, then the English sentence structure will be wrong. Okay, because the sentence structure of each language is different. Okay, so please make sure that you do not translate word to word, Hindi to English or your mother tongue to English. You think in English, right, and then speak in English. Okay, so don't use translation method. It is not going to help. That is why I am coming live every Saturday at 8 p.m. so that you can start learning English, so that you can speak learning English without focusing on the translation and without focusing on the grammar, the techniques of the grammar. Okay, so let's start. One more thing which I have done last time, I have given the link of a worksheet. Okay, so every Saturday I'm going to give you the worksheet as an assignment related to that particular session. Okay, so today we are going to cover the past event. You will be getting the worksheet in the description box, the link of the worksheet. Please download that worksheet and complete your assignment, because only these sessions are going to helpful for you only when you use them productively. Okay, don't just sit passively and listen to me and go and bye bye. No, I don't want you to learn English like this. I want you to follow the instructions, understand the concept, okay, and then do the assignment, whatever I have mentioned in the worksheet, do the assignment in the same way. All right, so this is the way you can take most of the benefit from these sessions. And also, please make sure that if you have any doubt,
Okay, if you have get confusion or when I'm saying something and you have any question, please put in a comment box so that I can answer your question during the live sessions. And even if you're watching it in replay, in a recording, then also please put your doubts in a comment box so that I can understand that this is your confusion, and I will address, if possible, in the reply of your comment box, or I will address your doubt in the next session. Okay, so this is how the session or structure or the session will be organized. Okay, अब हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, अब मैं ये सेशंस है ना हिंदी में ज्यादा कंडक्ट होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो जो ऑडियंस है मेरी, उस वो हिंदी स्पीकिंग ज्यादा है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं ये सेशंस को इजी बनाने के लिए उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, बट इसका मतलब ये नहीं मैं कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाऊंगी. नो. ओके, जैसे मैंने पहले बोला है, इंग्लिश आपको सिखाई जाएगी हिंदी लैंग्वेज को यूज करते हुए, लेकिन ट्रांसलेशन यहाँ पर नहीं होगा. ये इसलिए होगा ताकि आप इसको इजी तरीके से अच्छे से मेरे जो मेथड्स है उसको अच्छे से समझ पाए. Okay, so let's start, and I'm going to share my screen now. Okay, so I hope आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है. मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, वैसे तो ये काफी बड़ा है, आप लोगों को इजी दिखाई दे रहा होगा. और यदि नहीं दे रहा है तो आप अपने फोन को जूम आउट कर सकते हैं और फिर उसके बाद इसको देख सकते हैं. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट द पास्ट इवेंट और द इंसिडेंट. ठीक है, इसमें मैं हर चीज को, हर सेशन को मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो से रिलेट करूंगी कि बेसिकली मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ. मैं आपको पास्ट टेंस सिखा रही हूँ, मैं आपको भूतकाल सिखा रही हूँ इंग्लिश में, लेकिन हम ग्रामर के थ्रू नहीं जाएंगे. हम क्या करेंगे, हम रियल टाइम सिनेरियो को पिक करेंगे और उस रियल टाइम सिनेरियो में पास्ट टेंस को कैसे यूज किया जाता है वो बताऊंगी मैं. ठीक है, विदाउट गोइंग इनटू ग्रामर टेक्निक्स. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और एक एग्जाम्पल है आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, सो दैट आपको दोनों, वेदर इट इज योर पर्सनल स्पेस और प्रोफेशनल स्पेस, आपको पता चलना चाहिए कि पास्ट टेंस को कैसे यूज किया जाता है. और या तो फिर जब आप पर्सनल लाइफ में, जब आप एक गेट टुगेदर कर रहे हैं, या अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप कुछ ट्रिप जो आप कहीं घूम के आए हैं, आप उस ट्रिप के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपने लाइफ की स्टोरीज किसी को शेयर कर रहे हैं, तो जो इवेंट्स हो चुके हैं आपकी लाइफ में, जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं आपकी लाइफ में, वो सब चीजों को शेयर करने के लिए आपको पास्ट टेंस का यूज करना पड़ता है. ठीक है, अब आता है प्रोफेशनल स्पेस पे या वर्क प्लेस में आपको कहाँ यूज करना पड़ता है पास्ट टेंस. आपको यूज करना पड़ता है जब आप प्रोजेक्ट अपडेट दे रहे होते हैं, जब आप किसी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, या जब आप क्लाइंट को अपने लास्ट मंथ की या लास्ट वीक की मीटिंग और उसके प्रोजेक्ट रिलेटेड स्टेटस के बारे में बात कर रहे होते हैं, आप जब स्प्रिंट रिव्यू कर रहे होते हैं, आप जब पुराने किसी प्रोजेक्ट के बारे में, सक्सेस स्टोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं, या जब आप इंटरव्यू में अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे होते हैं, वहां सब केसेस में आपका पास्ट टेंस यूज होता है. ठीक है, क्योंकि सारे इवेंट, सारे इंसिडेंट, सारे एक्सपीरियंसेस आपके हो चुके हैं, करेक्ट, इसलिए आपका पास्ट टेंस यूज होता है. ऑलराइट, तो अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, आपका एक एग्जाम्पल लेती हूँ. पहले हम पर्सनल स्टोरीज से शेयर करते हैं. ठीक है, तो सॉरी, एक सेकेंड. ओके, तो मैं सिंपल इजी तरीके से आपको समझाती हूँ. पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, मान लीजिए कि आप एक गोवा ट्रिप में गए थे. ठीक है, अब गोवा ट्रिप पे जब आप गए थे, तो आप क्या बोलोगे, जैसे हाँ, आप जून में गोवा ट्रिप गए थे. ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि जून में हम गोवा ट्रिप गए थे. ठीक है, तो इसको यदि मुझे इंग्लिश में बोलना है तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू गोवा इन जून. समझ में आ रहा है. देखो, इंग्लिश जैसा मैं सिखा रही हूँ ना, ठीक है, जैसे मैंने बोला, मैं ग्रामर पे नहीं जाऊंगी. अब आप बोलोगे कि फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वेंट कब लगाना है, ये गो कब लगाना है, राइट. तो आपको कंफ्यूजन होगा. ये कंफ्यूजन मैं धीरे 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 आपके क्लियर करती जाऊंगी, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल सेंटेंसेस सिखाना है. ठीक है, आपको प्रैक्टिकल सेंटेंसेस सिखाना है. ओके,
तो इस सेंटेंस में हम गोवा गए थे, अब जैसे मैं बोलूं कि हम गोवा जा रहे हैं, तो वो एक्शन अभी हो रहा है। हम गोवा गए थे, लास्ट मंथ गए थे, लास्ट ईयर गए थे, तो वो इवेंट हो चुका है। ठीक है, वो इवेंट हो चुका है, आप वापस आ चुके हो, आपके सारे बातें गोवा से रिलेटेड हो चुकी है, तो वो पास्ट बन गया, आपका भूतकाल बन गया, आपका एक एक्सपीरियंस मेमोरी के जैसे आप उसको याद कर रहे हो, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने लास्ट टाइम आपको वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स को यूज करेंगे हम, ये भी बोला था। तो प्रेजेंट टेंस में हमने क्या क्या यूज किया था, हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया था जब हम डेली रूटीन की बात कर रहे थे, जैसे आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई गेट अप, आई गो टू ऑफिस और आई गो टू कॉलेज, राइट। तो ये सब हमने प्रेजेंट, जब हम करेंट के सिनेरियो की बात कर रहे थे तब हम यूज कर रहे थे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब जब हम पास्ट की बात करेंगे तो वर्ब का हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे क्या हो जाता है, गो का क्या हो जाता है, वेंट हो जाता है। ठीक है, फिर रन का क्या हो जाता है, रैन हो जाता है। ये मैंने थोड़ा सा लास्ट सेशन में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, आप एक बार देख लो तो आपको रेफरेंस याद आ जाएगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आपको वैसे तो आपने अपने स्कूल में इंग्लिश पढ़ी होगी, ग्रामर थोड़ी बहुत भी, तो आपको याद होगा कि वर्ब के अलग अलग फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3, राइट। तो रन रैन रन, कम केम कम, ईट एट ईटन, ये सब आपको याद होगा, राइट। टेल टोल्ड टोल्ड, राइट। तो ये सब प्ले प्लेड प्लेड, तो ये सब हमने सीखा हुआ है। तो अब मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ कि पास्ट टेंस पे ऐसे सेंटेंसेस पे जब हम पुराने इंसिडेंट्स की बात कर चुके हैं, कर रहे हैं, जो हो चुका है ऑलरेडी, जो पास्ट में चला गया है, तो उस केस पे हम क्या बोलेंगे, उस केस पे हम वर्ब का सेकंड केस यूज करेंगे। और इस केस पे जब हम बोल रहे हैं कि हम जून में गोवा गए थे, तो जाने को गए थे को क्या बोलते हैं, जाना। जाना मतलब क्या होता है, वेंट। ठीक है, पास्ट टेंस उसका हो गया वेंट। तो क्या हो गया, आई वेंट टू गोवा इन जून। अब हम हैं, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की जगह पे वी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। वी वेंट टू गोवा इन जून। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब आप देखो कि अब पास्ट में भी अलग अलग तरीके से बातें हो सकती है। यहाँ जो फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे आपने बोला था कि वी वेंट टू गोवा इन इन जून, तो ये तो आप अपनी पुरानी बात बता रहे हो कि हाँ हम गए थे। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई आपसे पूछे कि यार जब मैंने कॉल किया था तब तुम क्या कर रहे थे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि अच्छा अच्छा, हाँ आपने जब कॉल किया था ना, तो शायद उस समय हम लोग गोवा बीच पे घूम रहे थे। ठीक है, या आपने जब कॉल किया था ना, हाँ हाँ उसी दिन तो हम लोग ट्रेन में बैठे थे, उसी दिन तो हम लोग गोवा जा रहे थे, राइट। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे पास्ट में, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा था, तो जब चलता हुआ कोई एक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे, राइट। तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश में उसको हम कैसे बोलेंगे, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वी, या पहले हम आई से बनाती हूँ तो आपको जल्दी पकड़ में आ जाएगा। यहाँ पे बनाती हूँ, आई वॉज गोइंग टू टू गोवा। ठीक है, तो जब आपने, अभी मैं सिर्फ इतना सेंटेंस उठाया है मैंने। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इतना सेंटेंस उठाया है क्योंकि मैं अलग अलग एक्शन की बात करना चाह रही हूँ। यहाँ पे इस एक्शन की बात हो रही है जो पास्ट में एक्शन चल रहा था। पास्ट में जब आपने कॉल किया था तब हम गोवा जा रहे थे, वो जाने का एक्शन चल रहा था, हम रास्ते में थे। तो वहां पे क्या हो जाएगा, आई वॉज गोइंग टू गोवा। आई वॉज गोइंग टू गोवा। मैंने लास्ट सेशन में भी बोला है और इस सेशन में फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जब भी कोई एक्शन चल रहा होता है या चल रहा था उस टाइम पे वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे ING लग गया। ठीक है, और वॉज क्यों लगा, क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे पास्ट टेंस में वॉज या वर लगता है जब हम किसी एक्शन के चलने की बात करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूं मैं कि जब कोई एक्शन चल रहा था पास्ट टेंस में,
ठीक है, पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मे बी 2012 की बात कर रहे हो आप, मे बी आप 2020 की बात कर रहे हो, मे बी आप लास्ट मंथ की बात कर रहे हो, मे बी आप लास्ट वीक की बात कर रहे हो, जो काम किसी पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा था वो उस पे हम क्या यूज करेंगे, उस पे हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे। गोइंग, रनिंग, ईटिंग, वॉशिंग, राइट, टॉकिंग, तो ये सब क्या हो गया, ये सब जो काम एक्शन चल रहा था हम उसकी बात कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे वॉज लगेगा या वर लगेगा। अब ये वॉज वर कब लगेगा, तो जैसे मैंने इस एम आर को एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम पे, सेम वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आता है। आई के साथ जैसे एम लगा था वहां पे, यहाँ पे लग जाएगा वॉज। ठीक है, यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ लगेगा वर। ठीक है, एक सेकेंड में इसको अंडरलाइन हटा देती हूँ। ओके, यू के साथ क्या लगा, वर। ओके, फिर ही शी इट के साथ क्या लगेगा, सिंपल है, वॉज लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर है। तो एक बेसिक समझ के चलो कि इस ही शी इट सिंगुलर के साथ वॉज लगता है। सिर्फ यू एक ऐसा केस है जहां चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, दोनों केस में वर ही लगता है। आई वॉज यू, पर ही शी इट वॉज। और प्लूरल कहाँ हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा वी में। वी मतलब हम, तो हम के साथ भी क्या लगता है, वर। दे क्या मतलब होता है, वो सब या वे सब, तो उसके साथ भी लग जाएगा वर। ठीक है, तो इस तरीके से वॉज और वर का यूज होता है। हम आगे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या यूज करना है। लेकिन अभी सिर्फ सेंटेंस के ये एग्जाम्पल के साथ में आपको सेंटेंस के टाइप समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पास्ट में कितनी तरह के एक्शन हो सकते हैं। पास्ट में एक एक्शन हो सकता है जब आप किसी पास्ट इंसिडेंट या इवेंट के बारे में बात कर रहे हो कि हाँ हम गोवा गए थे, कि हाँ हाँ हम उस रेस्टोरेंट पे गए थे, हाँ हाँ हमने वहां पे खाना खाया था, हाँ हाँ हम वहां दौड़ रहे थे। ठीक है, खाना खाया था एक अलग सेंटेंस हो गया, उसका मीनिंग है कि वो एक्शन पूरा हो चुका है, बात खत्म हो गई है। और एक ऐसा है एक्शन जो उस पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा था। हाँ हाँ, रात को, कल रात को 8 बजे तो मैं टीवी देख रही थी। ठीक है, तो देख रही थी, वो 8 बजे रात को टीवी देखने का एक्शन चल रहा था। हाँ हाँ, लास्ट वीक को संडे को तो हम लोग मूवी गए थे, ये एक्शन पूरा हो चुका है, तो ये ऊपर वाले कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि मैं अलग अलग टाइप से सेंटेंसेस को समझाने की कोशिश कर रही हूँ और अलग अलग यूसेज बता रही हूँ कि आप अलग अलग तरीके से अलग अलग सेंटेंस के टाइप को कैसे यूज कर सकते हो। अब एक सेंटेंस आता है, एक सेंटेंस का टाइप होता है कि जब हम किसी पास्ट की बात करते हैं उसके पहले ही ऑलरेडी कोई एक्शन हो चुका है। जैसे 2015 से पहले, फिर से रिपीट कर रही हूँ, 2015 से पहले हम वर्ल्ड कप T20 जीत चुके थे। तो 2015 आया, वो भी पास्ट में है, लेकिन उसके पहले ऑलरेडी क्या हो चुका था, ऑलरेडी ये हो चुका था तो कि इंडिया को वर्ल्ड कप मिल चुका था T20 में, राइट। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कई सारे पास्ट टेंस में, पास्ट के जब हम इवेंट की बात करेंगे उसमें ही अलग अलग तरह के सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। एक सेंटेंस ऐसा होगा जो सिर्फ पास्ट के इवेंट की बात करेगा कि हाँ वो पास्ट इवेंट पे खत्म हो गया। एक सेंटेंस ऐसा होगा जो पास्ट में कोई एक्शन चल रहा होगा उसकी बात करेगा। और एक एक्शन ऐसा होगा, एक सेंटेंस ऐसा होगा जो पास्ट में ही किसी रेफरेंस के टाइम पे वो एक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पास्ट के अलग अलग सेंटेंसेस के टाइप होते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। इस टाइप हमने इस ये जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था ये हमारा पर्सनल एग्जाम्पल था जहां पे हम गोवा ट्रिप की बात कर रहे थे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो हम प्रोजेक्ट सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम प्रोजेक्ट सक्सेस स्टोरी में एक प्रेजेंटेशन आपका चल रहा है। ठीक है, आप एक जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपका लीड है, ठीक है, वो आप उसके सामने अपने पुराने प्रोजेक्ट की सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हो, आपका टेस्टिमोनियल शेयर कर रहे हो। तो आप कैसे बोलोगे, हमने प्रोजेक्ट 2023 में स्टार्ट किया था। ठीक है, किया था, वो भी प्रोजेक्ट अब खत्म हो चुका है तो वो सारा पास्ट हो गया, वो पास्ट इवेंट की बात हो रही है। तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, वी कंप्लीटेड। ठीक है, सॉरी स्टार्टेड, वी स्टार्टेड। क्यों स्टार्टेड लगाया,
क्योंकि स्टार्टेड स्टार्ट का V2 है, और क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पास्ट में वो जो इवेंट स्टार्ट किया था पास्ट की बात है, इसलिए हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। और स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? स्टार्टेड। वी स्टार्टेड प्रोजेक्ट इन 2023। अब आप सोचोगे, अब आप ये बोलोगे कि हम मैं हर जगह इन क्यों लगा रही हूँ? तो याद रखो कि हमेशा जब ईयर की बात होती है, जब किसी जगह की बात होती है, जैसे किसी सिटी की बात होती है, उसके पहले इन लगता है। इस सिटी में तो क्या हो जाएगा? इन। इस ईयर में तो क्या हो जाएगा? इन। इस घटना में तो क्या हो जाएगा? इन द इंसिडेंट, इन सिटी, इन ईयर, राइट? तो दिस तरीके से इन का यूज होता है। जैसे जैसे हम प्रीपोजिशन को यूज करते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी, ठीक है? तो अभी मैंने क्या सेंटेंस बनाया? वी स्टार्टेड प्रोजेक्ट इन 2023। हमने प्रोजेक्ट 2023 में स्टार्ट किया। ये सिंपल हो गया। एक इंसिडेंट की बात बता रही हूँ, इवेंट की बात बता रही हूँ मैं। टीम पाइथन यूज कर रही थी। जब वो प्रोजेक्ट चल रहा था उस समय टीम पाइथन यूज कर रही थी, मतलब पाइथन यूज करने का एक्शन उस पूरे ड्यूरेशन में चल रहा था। तो क्या हो गया? एक्शन चलने की बात हो गई, तो कौन सा वाला फॉर्म लग जाएगा? ING वाला। अब टीम को यदि आप देखोगे, अब वॉज पर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूअस की बात हो रही है, एक्शन चलने की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा? टीम हो गई सिंगुलर क्योंकि एक टीम की बात हो रही है। टीम वॉज यूजिंग, यूज एक्शन है, यूज कर रही थी, राइट? तो यूजिंग आ जाएगा, ING लग जाएगा उसके अंदर। टीम वॉज यूजिंग पाइथन। क्लियर हो रहा है? पता चल रहा है? कुछ भी डाउट हो आप मुझे पूछते चलो, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको क्लियर पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है? ओके, ऑलराइट, एक सेकेंड मैं अपना वॉल्यूम कम कर लेती हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, ओके। तो आप मुझे एक क्वेश्चन पूछते जाओ, ताकि कुछ भी डाउट हो तो आपको क्लियर होता जाएगा लाइव सेशन के अंदर ही। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। आपके सॉरी, डेडलाइन आने से पहले, डेडलाइन आने से पहले प्रोजेक्ट लाइव हो गया था। देखो, वो डेडलाइन भी पास्ट में थी, लेकिन डेडलाइन के आने के पहले ही खत्म हो चुका था प्रोजेक्ट, वो ऑलरेडी हो चुका था। तो जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वहां पे सेंटेंस का फॉर्मेट हो जाता है प्रोजेक्ट हैड। यहाँ पे आता है हैड, और आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो स्टार्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट, सॉरी, प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था, हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो प्रोजेक्ट हैड कंप्लीटेड, सॉरी, कंप्लीटेड। ठीक है? तो देखो अभी समझ में आ रहा ना कि हैड कहाँ पे यूज हो रहा है? ठीक है, तो बस यही करना है हमको। सॉरी, एक सेकेंड, या ओके, ओके। सो क्या हो गया? प्रोजेक्ट हैड कंप्लीटेड। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको पता चल रहा होगा कि कहाँ पे किस तरह के सेंटेंस। यहाँ पे भी तीन तरह के सेंटेंसेस मैंने बताए। एक बताया जब मैं इवेंट या इंसिडेंट की बात कर रही हूँ, वो हो चुका है, पास्ट के इवेंट की बात कर रही हूँ, कब हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब बात नहीं कर रही हूँ। तो वहां पे हमने क्या यूज किया? वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया। अब हम ऐसे इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं जो उस समय घटना चल रही थी, उस समय वो काम चल रहा था। तो वहां पे हमने क्या यूज किया? ING वाला फॉर्म यूज किया। ठीक है, इसके बाद जब हम ऑलरेडी कोई एक्शन हो चुका था किसी पर्टिकुलर टाइम के रेफरेंस पे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला कि डेडलाइन आने से पहले, मान लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2023 में, और 2024 में इसका, 2024 जून में इसका डेडलाइन था, लेकिन आपने तो प्रोजेक्ट मई 2024 में ही खत्म कर दिया, है ना? तो डेडलाइन के पहले ही खत्म कर दिया, तो उस पे, उस एक्शन में हम क्या यूज करेंगे? उस केस में हम क्या यूज करेंगे? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये मैंने सेंटेंस के टाइप समझाए कि पास्ट में भी सेंटेंस कितनी अलग अलग तरीके से बोले जा सकते हैं। अब मैं आपको और भी एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले कि किस तरीके से सेंटेंसेस का यूज होता है। ठीक है, तो ओके, लेट मी गो डाउन। ओके,
तो अब देखो, जैसे मैंने कुछ हिंदी सेंटेंसेस बोल रही हूँ, उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, विदाउट ट्रांसलेशन, ठीक है, विदाउट ट्रांसलेशन। तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश में पास्ट टेंस या पास्ट के इवेंट को कैसे बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला हम जून में गोवा गए थे, तो यहाँ पे देखो गोवा गए थे, बात खत्म हो गई, सारा एक मेमोरी बन गई है ये। तो मेमोरी को हम कैसे शेयर करेंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म में। तो वी वेंट टू गोवा इन जून, यहाँ पे सिंपल आ गया। अब मैंने लास्ट टाइम भी बताया है कि टू कहाँ आता है, जब हम किसी प्लेस की, जब हम किसी डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो उसके पहले टू आता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया कि किसी भी मंथ ईयर के पहले भी इन आता है। जून में हम गोवा गए थे, तो में लगाने के लिए हमने क्या यूज किया, इन यूज किया, ठीक है। हमने 2023 में प्रोजेक्ट शुरू किया। अब 2023 पास्ट की बात हो गई, हम पुराना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो जब भी हम पुराना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हम V2 लगाएंगे। तो हमने क्या बोला, वी स्टार्टेड द प्रोजेक्ट इन 2023, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, जब तुमने मुझे कॉल किया मैं ट्रेन से जा रहा था। तो जब तुमने मुझे कॉल किया, ठीक है, ये तो सिंपल है, ये मेमोरी की बात हो रही है। मैं उस समय क्या कर रहा था, मैं ट्रेन से जा रहा था। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है, एक जो एक पुराना इवेंट है कि तुमने मुझे कॉल किया, उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था, तो एक्शन वो ट्रेन से जाने का चल रहा था, इसलिए यहाँ पे दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया है। व्हेन यू कॉल, जब तुमने कॉल किया, यहाँ पे V2 लगा। आई वॉज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, मैं ट्रेवल कर रहा था ट्रेन से। तो यहाँ पे देखो ट्रेवल के साथ क्या लग गया, ING लग गया है, और आई के साथ क्या लगा है, वॉज, ठीक है। तो आई वॉज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा जा रहा था, तो वहां पे के द्वारा के लिए क्या लगाया, हमने बाय लगा दिया, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब तुमने मुझे कॉल किया, व्हेन यू कॉल, आई वॉज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से जा रहा था। यहाँ पे ING लगा है और यहाँ पे वॉज का यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्लाइंट मीटिंग के दौरान टीम काम कर रही थी। अब जब पास्ट में कुछ काम चल रहा था, तो मीटिंग चल रही थी, उस समय टीम क्या कर रही थी, तो टीम का एक्शन चल रहा था, तो ये भी कंटिन्यूअस की बात हो गई। तो जब कंटिन्यूअस की बात होती है तो ING फॉर्म लगता है और उसके साथ वॉज लगता है। तो क्या हो जाएगा, द टीम वॉज वर्किंग ड्यूरिंग द क्लाइंट मीटिंग, ड्यूरिंग मतलब दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द क्लाइंट मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, तुम्हारे घर आने से पहले हम निकल चुके थे। निकलने का एक्शन तो पहले ही हो चुका था, ऑलरेडी हो चुका था, तो वो क्या हो जाएगा, वी हैड लेफ्ट। निकलने को क्या बोलते हैं, लीव। लीव का P3 क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, लेफ्ट। तो वी हैड लेफ्ट बिफोर यू केम टू होम, बिफोर यू केम होम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसका हैड और V3 का यूज किया आपने, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है, रिव्यू मीटिंग शुरू होने से पहले हमने रिपोर्ट पूरी कर ली थी। तो रिपोर्ट पूरी हो गई थी और रिव्यू मीटिंग बाद में हुई थी, तो रिव्यू मीटिंग होने से पहले ही हमने वो रिपोर्ट पूरी कर ली थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन हैड प्लस V3 का यूज होगा। वी हैड कंप्लीटेड द रिपोर्ट, ठीक है, बिफोर द रिव्यू मीटिंग बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। यहाँ पे हम इवेंट, ये क्या, ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये मेमोरी है, ठीक है। उस मेमोरी को याद करके हम क्या बोल रहे थे कि हाँ हाँ उसके पहले ही हमारी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई थी। तो यहाँ पे जो मेमोरी हम शेयर कर रहे हैं उस पे लगेगा V2, और जो हम ऊपर वाला, जो हम उसके पहले जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है उस पे लगेगा हैड प्लस V3, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। और ये अगेन मैं बोल रही हूँ, टेक्निकली मत जाना, अपने सेंटेंस के हिसाब से अपना सोचना कि हैड कहाँ लगेगा और स्टार्ट V2 कहाँ लगेगा, हैड प्लस V3 कहाँ लगेगा और V2 कहाँ लगना चाहिए। अपने लॉजिक के हिसाब से सोचो, रूल के हिसाब से मत सोचना, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखो कि जब हम किसी मेमोरी को, किसी एक्सपीरियंस को याद कर रहे होते हैं, जो पुरानी घटना हो चुकी है, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। और जब किसी घटना को याद कर रहे होते हैं और उस घटना के रेफरेंस में कोई काम ऑलरेडी हो चुका हो गया था, तो वहां पे हैड प्लस V3 लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिस से ये समझ में आ जाएगा। मैं आपको वर्कशीट दूंगी, वहां पे आप खुद डिसाइड करोगे कि वहां पे हैड लगना चाहिए कि V2 लगना चाहिए, ठीक है। आप खुद सोच के बताना मुझे, और गलती होगी इट्स ओके, आपकी जितनी गलती होंगी उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो गलती करने से डरना मत। नेक्स्ट सेंटेंस है, कल मैंने अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखी। यस्टरडे, क्योंकि कल की बात हो रही है, बीत गया जो कल, उसकी बात हो रही है।
yesterday I watched a movie with my friends. Again it's a remembrance, it's an experience. तो यहाँ पे क्या लग गया, V2 लग गया. I watched a movie with my friends, मेरे साथ के, मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो with लग गया साथ के लिए. ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंसेस आपको बनाने आने चाहिए. अब कल हमने क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दिया, ये भी हम अपने एक्सपीरियंस को याद कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे वी गेव अ प्रेजेंटेशन. देने को क्या बोलते हैं, गिव. गिव का V2 क्या हो जाता है, गेव. वी गेव द प्रेजेंटेशन टू अवर क्लाइंट. ठीक है, ओके. दिया, को दिया, तो को के लिए भी हम टू का यूज करते हैं. खाने को दिया, बच्चे को दिया, गरीब को दिया, मेरे भाई को दिया. तो जब किसी को देने का एक्शन होता है तो वहां पे टू ब्रदर, टू माय सिस्टर, टू द चाइल्ड, जिसको भी दिया आपने उसके पहले टू आ जाता है. ठीक है, फिर आता है बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था. अब देखो बचपन में जो रूटीन में आप किया करते थे कोई का, हाँ हाँ, अरे बचपन में तो ना पेड़ में चढ़ा करता था मैं, मुझे याद है. अरे बचपन में ना तो मैं ऐसे किया करता था. तो बचपन में जो आप हमेशा कुछ कुछ एक्टिविटीज, बचपन के रूटीन की बात करते हो या बचपन की आदतों के बारे में बात करते हो, तो वहां पे क्या लग जाता है, यूज्ड टू. ठीक है, ये एक मॉडल वर्ब है, इसको यूज किया जाता है बचपन के रूटीन को या बचपन की आदतों को बताने के लिए. तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई यूज्ड टू प्ले cricket in my childhood. I used to climb tree in my childhood. I used to run faster in my childhood. तो कैसे पता चल रहा है ना आपको use to का यूज कैसे हो रहा है. use to के बाद जो भी आप काम करते थे वो आपको verb, action verb लगाना है. ठीक है, फिर इसके बाद आता है, पहले हमारी टीम हर हफ्ते स्प्रिंट रिव्यू किया करती थी. अब नहीं करती है, पहले किया करती थी, पहले रूटीन की बात हो रही है. तो आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अर्लियर, मतलब पहले our team, हमारी टीम used to have a sprint review every week. तो ये जो था लास्ट के दो सेंटेंसेस है, ये लास्ट के दो सेंटेंसेस आपको पास्ट के किसी रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं, या जब आप किसी आदत के बारे में बात कर रहे होते हो तो उस केस में आप यूज टू का यूज कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहती थी आपके साथ. यदि थोड़ा डाउट है, यदि बहुत फास्ट हो रहा था सेशन, तो प्लीज ये एक बार फिर से देखना रिकॉर्डिंग में, और जो भी वर्कशीट मैं आपको शेयर करने वाली हूँ ये अगेन एक बार गो थ्रू करना रिकॉर्डिंग देखने के बाद. उसके साथ साथ आप होमवर्क करना, बहुत इजी सेंटेंसेस रहेंगे, और जहां पे भी कुछ डाउट लगे आपको प्लीज कमेंट बॉक्स पे डालना, मैं आपको रिप्लाई करूंगी. और यदि रिप्लाई में आप सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं उसको नेक्स्ट सेशन में एड्रेस करूंगी. ठीक है, तो ये था कि पास्ट के इवेंट को, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोला जाता है. आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कर देना. आपको लगता है कि किसी और को इस सेशंस की जरूरत है तो शेयर कर देना, और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब तो करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे सेशंस के. ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्रि. एंजॉय योर हॉलिडे एंड गरबा. बाय बाय, टेक केयर.